Welcome to the next lecture. In the last lecture, you have seen about the operon, the concept of operon. Operon is a set of genes in which operator and structural genes are present. How operator is responsible for controlling the function of structural gene we have discussed in the previous lecture. उसी का continuation है, उसी के आगे का concept है. The next topic we are starting according to textbook is lac operon, also called as lactose operon. Now lac operon or lactose operon is the inducible operon in which in the case of E. coli, the operon is switched on. Operon, that is the set of gene, will be switched on in the presence of chemical inducer. And this chemical inducer is nothing but it is the lactose which is present in the medium, the lactose which is present in culture media. If we grow the bacteria E. coli in the culture media, एक कल्चर मीडिया में हमने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो किया, अगर उस कल्चर मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज विल बी एक्टिंग लाइक इंड्यूसर. लैक्टोज विल बी एक्टिंग लाइक इंड्यूसर. ये इंड्यूसर की डिटेल आगे आ रही है. लैक्टोज विल बी एक्टिंग लाइक इंड्यूसर and in the presence of inducer it allow a set of gene to express, it allows set of gene to transcribe and to translate, it allow a set of gene to synthesize functional protein or enzyme. So in the case of E. coli, the operon is a set of gene which is switched on in the presence of chemical inducer, and this chemical inducer is nothing but the lactose. Now this lac operon consists of 5 components. First one is regulator gene, also called as repressor gene. Second one is promoter gene. Third one is operator gene. Fourth one is a structural gene, and the fifth one is inducer. Remember, this inducer basically is not a part of operon, but it is required in this mechanism. Inducer not a component of operon. यहाँ पे mention किया मैंने, it is not a component of operon, but it is used in this process, used in this mechanism. Now, देखो previous lecture में हमने जो जीन के बारे में पढ़ा था, वही जीन यहाँ पर मैंने elaborate किया है. ये 3' end है, ये 5' end है. अभी जो कंपोनेंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं उसी कंपोनेंट्स को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं और इस पूरी जीन की फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करना है मुझे. रेगुलेटर जीन, दिस इज द पोजीशन ऑफ रेगुलेटर जीन. प्रमोटर जीन, दिस इज प्रमोटर जीन. इन सम केसेस रेगुलेटर और प्रमोटर के बीच में एडिशनल जीन भी हो सकती है which doesn't participate in this mechanism. मैंने उसको स्किप किया है. ये रेगुलेटर जीन है, ये प्रमोटर जीन है, थर्ड नंबर पे ये ऑपरेटर जीन है और ये स्ट्रक्चरल जीन है. ZYA इज अ स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन है. और इंड्यूसर इज अ केमिकल, इसके बारे में भी मुझे बताना है. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज रेगुलेटर जीन. Now what is the function of regulator gene in the case of lac operon? Listen carefully. Regulator, it controls the operator. Regulator जो है ये operator को control करता है. Regulator controls the operator. It controls the functioning of operator in coordination with inducer present in the cytoplasm. Cytoplasm में अगर inducer है, साइटोप्लाज्म में इंड्यूसर, लिसन हियर, जैसे ये ई कोलाई बैक्टीरिया, राइट, दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, दिस इज द साइटोप्लाज्म, अगर इसमें इंड्यूसर नाम का केमिकल है. अब ये बैक्टीरिया जो है ई कोलाई, इसके साइटोप्लाज्म में इंड्यूसर कब होगा? ये इंड्यूसर अगर बाहर की तरफ यानी कि कल्चर मीडिया में, अगर कल्चर मीडिया में लैक्टोज होगा तो दिस लैक्टोज डिफ्यूजेस इनटू द सेल एंड इट इज एक्टिंग लाइक इंड्यूसर. तो अगर कल्चर मीडिया में लैक्टोज है तो ये सेल के अंदर, ई कोलाई के अंदर जाएगा एंड दिस लैक्टोज इज एक्टिंग लाइक इंड्यूसर. सो रेगुलेटर जीन का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटर जीन, इट कंट्रोल्स द ऑपरेटर जीन इन कॉपरेशन विथ inducer present in cytoplasm.
अब ऑप्शनल है, इंड्यूसर हो भी सकता है, इंड्यूसर नहीं भी हो सकता है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज एक एक करके हम देखेंगे। ओके, अब रेगुलेटर जीन का दूसरा फंक्शन क्या है? रेगुलेटर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिप्रेसर प्रोटीन। देखो बच्चों, रेगुलेटर जीन जो है ना, ये सबसे पहले क्या करती है? रेगुलेटर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। रेगुलेटर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। रेगुलेटर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा। रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, यानी रेगुलेटर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, उसका ट्रांसलेशन होगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी। ये रिप्रेसर प्रोटीन जो बनती है, रेगुलेटर जीन द्वारा जो रिप्रेसर प्रोटीन बनती है, इसको हम रेगुलेटर प्रोटीन भी कहते हैं, बिकॉज इट controls the function, because it regulates the function of structural gene. Imagine, अभी ये रेगुलेटर जीन जो है, रेगुलेटर जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, रिप्रेसर एमआरएनए बना, रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बना, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जो बना है, ये रिप्रेसर प्रोटीन ने क्या किया? ये रिप्रेसर प्रोटीन जो यू शेप आपको दिख रहा है, ये रिप्रेसर प्रोटीन ने ऑपरेटर साइट को ब्लॉक कर दिया। दैट मीन्स ये ऑपरेटर जो है वो ब्लॉक हो गया, ये मैकेनिज्म ऑफ हो गया। ये मैकेनिज्म ऑफ हो गया मतलब आगे की स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और इससे प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी। लिसन केयरफुली, ये पॉइंट समझ जाओ तो आगे का कॉन्सेप्ट समझना इजी है। रेगुलेटर जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, रिप्रेसर एमआरएनए बना, रिप्रेसर एमआरएनए का ट्रांसलेशन हुआ, रिप्रेसर प्रोटीन बनी। जो रिप्रेसर प्रोटीन बनी है बच्चों, ये रिप्रेसर प्रोटीन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, अगर लैक्टोज नहीं है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगी? ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर साइट को, ओ साइट को ब्लॉक कर देगी, मतलब इस साइट को ऑफ कर देगी। इसने इस साइट को स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने की वजह से आगे स्ट्रक्चरल जीन जो है, ये स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, और इससे कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, इससे कोई पॉलीपेप्टाइड या एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, नाउ अभी उसके बाद ये मैंने रेगुलेटर के बारे में बताया। द सेकेंड वन इज प्रमोटर। अच्छा, एक केस और, अगर ये रेगुलेटर जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, इससे रिप्रेसर प्रोटीन बनी, जो रिप्रेसर प्रोटीन बनी है, अगर कल्चर मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करेगा, और ये रिप्रेसर प्रोटीन इस साइट को ब्लॉक नहीं कर पाएगी, और ये साइट अगर ब्लॉक नहीं होगी मतलब ऑन रहेगी, तो आगे का मैकेनिज्म होगा। ये कब होगा? जब कल्चर मीडिया में और सेल में लैक्टोज प्रेजेंट होगा। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये तीनों एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, इस जीन द्वारा बनाई गई एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये रेगुलेटर जीन का फंक्शन क्लियर हुआ। द सेकेंड वन इज प्रमोटर जीन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रमोटर जीन? रिमेंबर बेटा, प्रमोटर जीन रेगुलेटर के बाद प्रेजेंट है, ऑपरेटर से पहले प्रेजेंट है। लोकेशन यू कैन सी क्लियरली, इट इज गिवन हियर। ऑपरेटर से पहले प्रेजेंट है, रेगुलेटर के बाद प्रेजेंट है। प्रमोटर जीन का ये फंक्शन मैंने यहां पे लिखा है, इट मार्क द साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। ये आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग की साइट डिसाइड करती है। नाउ रिमेंबर, आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत कहां पड़ेगी? आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत Z, Y और A जीन के ट्रांसक्रिप्शन में पड़ेगी। आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत Z, Y और A यानी स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन में पड़ेगी, और उस आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट प्रमोटर पे है। अगर इस आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने मिला, तो वो Z, Y और A जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगी। लेकिन अगर ये साइट ब्लॉक हुआ, आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने नहीं मिला, तो क्या होगा? आगे का ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा।
So that is the first function. It marks the site at which RNA polymerase binds. RNA polymerase यहां पर बाइंड होता है और RNA polymerase का फंक्शन Z, Y और A जीन के ट्रांसक्रिप्शन में होगा. Second thing is when operator is on, जब ये रास्ता खुला है, ऑपरेटर इज ऑन मतलब ये रास्ता खुला है, मतलब रिप्रेसर प्रोटीन ने इसको बाइंड नहीं किया है जब ये रास्ता खुला है. व्हेन ऑपरेटर इज ऑन, एंजाइम, एंजाइम मतलब आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज. एंजाइम जो है स्ट्रक्चरल जीन तक जाएगी. ऑब्वियसली ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ना, आरएनए पॉलीमरेज, इसको यहां तक पहुंचने के लिए इट हैज टू क्रॉस ऑपरेटर जीन. ये आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर जीन से गुजरती हुई, ऑपरेटर जीन से पास होती हुई स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंचेगी और स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन में ये हेल्प करेगी. ओके, सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, दिस प्रमोटर जीन, it determines which strand of DNA act as a template. ये इसका एक एडिशनल फंक्शन बुक में दिया है. ओके, कि प्रमोटर साइट डिसाइड करता है डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसमें से कौन सा स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब कौन से स्ट्रैंड को टेम्पलेट कंसीडर किया जाएगा. एज यू नो, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसी के सामने ट्रांसक्रिप्शन होता है. तो ये तीन फंक्शन प्रमोटर के हो गए. I hope this point is clear. Now the next point, that is operator gene. बच्चों operator gene या तो on होगा या तो off होगा. दोनों possibilities हमने देखी अभी. 1 मिनट में रिवाइज कर दो बेटा. ये operator gene अगर off है, operator gene ना एग्जाम्पल ये ब्लॉक है, अगर operator gene off है, operator gene को किसने ब्लॉक किया? रिप्रेसर प्रोटीन ने. रिप्रेसर प्रोटीन को किसने फॉर्म किया? रेगुलेटर जीन ने. रेगुलेटर जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, रिप्रेसर प्रोटीन बनी. ये रिप्रेसर प्रोटीन ने इसको ब्लॉक कर दिया. ओके, रिप्रेसर प्रोटीन ने ऑपरेटर जीन को ब्लॉक किया. जब ऑपरेटर जीन ब्लॉक हुआ तो प्रमोटर जीन पे जो आरएनए पॉलीमरेज था, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा सकता. जब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा सकता तो आगे स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता और वो एंजाइम्स नहीं बन सकती जिस एंजाइम की जरूरत है लैक्टोज के डाइजेशन के लिए. दैट इज अ वन ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन, इमेजिन अगर कल्चर मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट है, कल्चर मीडिया में अगर लैक्टोज प्रेजेंट है ना, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ये लैक्टोज डिफ्यूज होकर के सेल में जाएगा, इकोलाई में जाएगा. ये लैक्टोज किसका काम करेगा? इंड्यूसर का काम करेगा. अब बच्चों देखो, रिप्रेसर प्रोटीन जो है ना, रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं. ये रिप्रेसर प्रोटीन, राइट, ये वाली रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन प्रीवियस केस में इस यहां पे जाके अटैच हो गई, मतलब ये ऑफ हो गया था ना. Now in the second case, if lactose is present in the cell, it is acting like an inducer in the E. coli. तो ये जो इंड्यूसर है ना, ये इंड्यूसर ये इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा. इंड्यूसर किसके साथ बाइंड हो गया? इंड्यूसर रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड हो गया. नाउ दिस रिप्रेसर प्रोटीन विल नॉट बी एबल टू, रिप्रेसर प्रोटीन विल नॉट बी एबल टू अटैच टू ऑपरेटर जीन. ये खुद ब्लॉक हो गई, ये खुद ब्लॉक हो गई, रिप्रेसर प्रोटीन खुद ब्लॉक हो गई. इसलिए रिप्रेसर प्रोटीन अब ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं कर सकती और ये रास्ता खुला रहेगा, ये मैकेनिज्म ऑन रहेगा. जब बच्चों ये रास्ता खुला रहेगा तो क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज यहां पर जाएगा और आगे वाली जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, उससे नेसेसरी एंजाइम्स का प्रोडक्शन होगा. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द स्ट्रक्चरल जीन. तो ये जो ऑपरेटर है ना, ये ऑपरेटर अगर ये ब्लॉक हो गया तो ये पूरे मैकेनिज्म को, अगर रिप्रेसर प्रोटीन ने इसे ब्लॉक कर दिया तो ये पूरे मैकेनिज्म को रिप्रेस कर देता है, स्टॉप कर देता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चरल जीन. बच्चों व्हाट इज स्ट्रक्चरल जीन? एज सेड अर्लियर, हमने प्रीवियस केस में पढ़ा था, द जीन which is actually responsible for synthesizing the protein or enzyme which is required in this mechanism, which is required in the mechanism of lactose catabolism. अभी कल्चर मीडिया में लैक्टोज था, वो लैक्टोज सेल के अंदर आया, उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए
तीन एंजाइम यूज होती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। और ये जो Z है बेटा, इन दिस केस, इन द केस ऑफ लेकोपेरॉन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग Z यू कैन राइट लेक Z, यू कैन राइट लेक Y, और यू कैन राइट लेक A. That is Z gene in the case of lecoperon, Y gene of lecoperon and A gene of lecoperon. So Z gene is responsible for synthesizing beta galactosidase. Y gene, LEC-Y gene is responsible for synthesizing permease, and LEC-A gene is responsible for synthesizing trans-acetylase. अब यहां पर सुनिए, दो पॉसिबिलिटी हम साथ में लेके चल रहे हैं। अगर ये साइड ब्लॉक है, ऑप्शन नंबर 1, अगर ये साइड ब्लॉक है, वंस अगेन 2 बार मैं रिवाइज किया, एक बार और सुन लो। अगर ये साइड ब्लॉक है बेटा, ये साइड को किसने ब्लॉक किया? रिप्रेसर प्रोटीन ने ब्लॉक किया ना। रिप्रेसर प्रोटीन को किसने सिंथेसाइज किया? रेगुलेटर जीन ने सिंथेसाइज किया। अगर ये ब्लॉक है तो प्रमोटर जीन पे जो आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, ये आगे नहीं जा सकता, और आगे वाली ये तीनों जीन होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 जीन, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता इन द एब्सेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड पॉसिबिलिटी, रेगुलेटर जीन ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। नाउ दिस रिप्रेसर प्रोटीन खुद ब्लॉक हो गई, रिप्रेसर प्रोटीन की एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड हो गया। कौन बाइंड हो गया? इसके एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया लैक्टोज, दैट इज इंड्यूसर बाइंड हो गया। ये इंड्यूसर क्या करेगा? अब इंड्यूसर बाइंड हो गया तो इसने रिप्रेसर प्रोटीन को डीएक्टिवेट कर दिया। नाउ दिस डीएक्टिवेटेड और ब्लॉक्ड रिप्रेसर प्रोटीन, ये यहां पर इसको ब्लॉक नहीं कर सकती, और ये साइट ओपन है, आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा। अब ये तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। As said earlier, ये एक सिस्ट्रॉन है, ये दूसरा सिस्ट्रॉन है, ये तीसरा सिस्ट्रॉन है। अब बच्चों क्या होगा इसका? ये तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, और इससे कॉमन एमआरएनए बनेगा। इसको हम कहते हैं लेक एमआरएनए। लेक एमआरएनए, इस पे 3 सिस्ट्रॉन्स हैं, मतलब 3 फंक्शन पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है ये। उसके बाद इसका ट्रांसलेशन होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन में फंक्शनली और फाइनली वी आर गेटिंग 3 सेपरेट प्रोटीन्स, 3 सेपरेट एंजाइम्स, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये तीनों एंजाइम जो है ये लैक्टोज के डाइजेशन के लिए यूजफुल हैं। रिमेंबर, इस वक्त कल्चर मीडिया में लैक्टोज हैं, क्योंकि लैक्टोज ने ही तो इसको ब्लॉक किया था, तभी तो इसको आगे जाने का परमिशन मिला। तो लैक्टोज के डाइजेशन के लिए ये तीनों एंजाइम यूज होंगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। द लास्ट पॉइंट इज अबाउट द इंड्यूसर। देखो बच्चों, रिप्रेसर प्रोटीन को जिसने ब्लॉक किया था ना, जिसने ब्लॉक किया था वो इंड्यूसर था। सो इट इज अ केमिकल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जिसको एलोलैक्टोज कहते हैं। इट इज एलोलैक्टोज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद द रिप्रेसर प्रोटीन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएक्टिवेटिंग रिप्रेसर प्रोटीन। सो इनएक्टिवेट्स, इसका फंक्शन, ये इंड्यूसर है, ये इंड्यूसर है। इंड्यूसर का फंक्शन है इट इनएक्टिवेट्स रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन जब इनएक्टिवेट होगी तो इसको बाइंड नहीं होगी, और आगे वाली जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा। फाइनली हमको 3 एंजाइम्स मिलेंगी। वो तीनों एंजाइम का क्या रोल है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इसी तरीके से तीनों एंजाइम का फंक्शन मैंने लिख के आपको समझाया था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ लेकोपेरॉन। नाउ इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज रोल ऑफ लैक्टोज। In the previous case, in the case of lecoperon, we have studied the entire mechanism depends upon the presence and absence of lactose in the culture media.
Now, what is the actual role of lactose is explained separately. The concept is same which we have studied in the previous two presentation. Now, the additional part is given, role of lactose. Now, remember, few molecules of lactose enter in the E. coli cell. ये E. coli है, Escherichia coli है, इसके अंदर few molecules of lactose enter होता है. अभी लैक्टोज के एंटर होने के लिए, सेल के अंदर एंटर होने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, परमिएज. अभी आपको अगर याद आ रहा है तो परमिएज एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए स्ट्रक्चरल जीन रिस्पॉन्सिबल है, और स्ट्रक्चरल जीन की फंक्शनिंग के लिए ओपेरॉन का, लेक ओपेरॉन का स्विच ऑन होना जरूरी है. ओके, बट फॉर एंटरिंग दिस फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टोज, परमिएज विच इज रिक्वायर्ड, small amount of permease is present even when operon is switched off. If the operon is switched off, operon बंद है, वो switched off है, but still small amount of permease is present in the cell, and this permease allowed the diffusion of lactose into the E. coli cell. इस permease के present होने की वजह से small amount of permease is present even when the operon is switched off. ये small amount of permease सेल के अंदर है, ये लैक्टोज के few molecules को डिफ्यूज होने की परमिशन देगा. अब लैक्टोज एंटर हो गया सेल में. Now this lactose is acting like inducer. Lactose is acting like inducer. Now this inducer binds the repressor. Binds the repressor protein. If you remember जो हमने ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट में यहां पर रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ना, हमने पढ़ा था, ये यू शेप ऐसा डायग्राम बनाया था, रिप्रेसर प्रोटीन. दिस लैक्टोज बाइंड्स विथ रिप्रेसर प्रोटीन. ये रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करेगा, और रिप्रेसर प्रोटीन की बाइंडिंग की वजह से नाउ दिस लैक्टोज दैट इज इंड्यूसर, ये अंदर की तरफ इंड्यूसर है ना, इंड्यूसर इज लैक्टोज, और ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है. ये दोनों का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इंड्यूसर और रिप्रेसर प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अब ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर जीन की साइट को ब्लॉक नहीं करेगा, ये साइट पे जाके अटैच नहीं होगा. फेल टू ज्वाइन विथ ऑपरेटर. अब ये कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से यहां पे अटैच नहीं हो सकता. मैंने प्रीवियस प्रेजेंटेशन में बताया था कि रिप्रेसर प्रोटीन खुद ही ब्लॉक हो गया, इसके लिए वो आगे वाली जीन को, मतलब आगे वाले ऑपरेटर पार्ट को ब्लॉक नहीं कर सकता. अब ये पार्ट खुला हुआ है, दैट मीन्स अब एंजाइम यहां से मूव करेगी, आरएनए प्राइमर एंजाइम यहां से मूव करेगी, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मूव करेगी, और आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट की वजह से स्ट्रक्चरल जीन जो है ना, जेड, वाई और ए स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन एंजाइम्स को, रिस्पेक्टिव एंजाइम्स को सिंथेसाइज करेगी. बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वंस अगेन है, जस्ट एक मिनट. सेल के अंदर लैक्टोज एंटर हुआ, लैक्टोज के एंटर होने के लिए परमिएज, स्मॉल अमाउंट ऑफ परमिएज इज सफिशिएंट फॉर एंटरिंग द लैक्टोज. दिस परमिएज इज प्रेजेंट इवन व्हेन द ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ. जो लैक्टोज आया, ये लैक्टोज ने रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड किया. नाउ इंड्यूसर, लैक्टोज इज इंड्यूसर, इंड्यूसर एंड रिप्रेसर प्रोटीन, ये दोनों मिलकर के इसको बाइंड नहीं करेंगे. अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन अलोन होता तो इसको बाइंड करता, लेकिन इंड्यूसर ने रिप्रेसर प्रोटीन को ब्लॉक कर दिया. अब यहां बाइंड नहीं होगा, ये ओपन रहेगा ना, ये पार्ट ऑन रहेगा, तो इट इज टर्न ऑन. ऑन रहने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज यहां से यहां माइग्रेट करेगा, और ये स्ट्रक्चरल जीन, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन जेड, वाई, ए, ये तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, इससे एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा. अब ये जो तीनों एंजाइम बनेगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, ये तीनों एंजाइम ने लैक्टोज को ब्रेक डाउन किया. लैक्टोज के डाइजेशन के लिए ही तो ये एंजाइम्स बनती हैं. इन्होंने लैक्टोज को ब्रेक डाउन किया. बच्चों, लैक्टोज के ब्रेकडाउन की वजह से लैक्टोज लेवल कम हो गया, लैक्टोज लेवल फॉल हुआ. लैक्टोज लेवल फॉल होने की वजह से इंड्यूसर कम हो गया.
अब इंड्यूसर कम होने की वजह से रिमेंबर ये एंजाइम्स ने लैक्टोज का ब्रेकडाउन किया, लैक्टोज का डाइजेशन किया, लैक्टोज लेवल कम हो गया, लैक्टोज लेवल की वजह से इंड्यूसर की क्वांटिटी कम हो गई। जब इंड्यूसर कम हो गया तो इंड्यूसर, अब ये इंड्यूसर नहीं रहा ना, इंड्यूसर कम हो गया। जब इंड्यूसर कम हो गया तो ये इंड्यूसर हट गया ना, स्ट्रक्चरल जीन इनएक्टिवेट हो गई। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन अकेला बचा, ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां पर आकर बाइंड हो जाएगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां पर बाइंड हो जाएगा। मतलब स्ट्रक्चरल जीन जो है ये अब ट्रांसक्राइब्ड नहीं होगी, क्योंकि अब आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर सकता, ये ब्लॉक हो गया। ये रास अब ये तीनों जीन Z, Y और A जीन, ये तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। मतलब ये लैक्टोज जो है, ये लैक्टोज अपने ही डाइजेशन के लिए खुद ही इंड्यूसर का काम करता है। लैक्टोज अपने डाइजेशन के लिए खुद ही इंड्यूसर का काम करता है, और ये पूरा मैकेनिज्म नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऑफ लैक्टोज। यहां पे ओपेरॉन, लेक ओपेरॉन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद सम न्यू टॉपिक।